जहां पर हम वी आर टॉकिंग अबाउट मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर, तो वो है एक प्रूडेंशियल रीजन। और जहां पर दूसरा हम बात कर रहे हैं कि भाई जाहिर सी बात है, अगर आप किसी को गवर्न कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उनको जो है डिसीजन मेकिंग में उनको पार्टिसिपेट कराएं। ये एक लेजिटिमेट रीजन बन जाता है। कुल मिला के दोनों ही सेट ऑफ रीजंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। The idea of power sharing has emerged in opposition to the notions of undivided political power. For a long time, it was believed that all power for government must reside in one person or group of persons located at one place. So basically, they are trying to say here is that initially what used to happen was there was this thinking that the political power should remain either with one person or with one political group or with one place. But gradually, this idea of centralizing the power gradually changed, and now there is a situation where people have started understanding that we need decentralization. Now, what is decentralization? We are going to study very soon. All right. So it was felt that if the power to decide is dispersed, it would not be possible to take quick decisions and to enforce them. So, of course, there has to be a logic behind every decision or behind every thinking. So what was the logic behind this thinking that the power has to be centralized? The people thought that if the power is decentralized, if it is squandered, if it is spread to different levels, then there will be a problem in making the decisions. For example, if you are the only authority, of course you can take decisions in a better way because there will not be anybody to put hindrance in your decision. Once you decide, or a close group of people, handful of people decide for a bigger population, then in that case what happens is like the decision is quick. Or else if it is decentralized process, then in that case हो सकता है कि आपके लिए हुए decision को लोग challenge करें, citing of course some arguments against it. तो ये लॉजिक था कि भाई डिसीजन जल्दी लिए जा सकते हैं, इफेक्टिव तरीके से लिए जा सकते हैं, इसीलिए सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इज इंपॉर्टेंट. दैट वाज द लॉजिक, बट दिस इज ऑफ कोर्स नॉट अ गुड लॉजिक. But these notions have changed with the emergence of democracy. One basic principle of democracy is that people are the source of all political power. In a democracy, people rule themselves through institutions of self-government. So basically, they're saying that this concept of centralization of power has evolved over a period of time, in fact has changed over a period of time. The concept of democracy has set in, and what the principle of democracy says is that if you are governing people, then you have to include those people in your decision making. So in a good democratic government, due respect is given to, and how are people involved in decision making? It's very simple. Basically what happens is they elect people, and the people who are elected, they act as representatives of those people, and they take decisions on their behalf. So indirectly people are taking decisions for themselves. In a good democratic government, due respect is given to diverse group and views that exist in a society. So many people think that democracy means only the process of election, while it is a very deep concept, and that we have already studied in class 9th political science. We understood how democracy is a very vast topic, and एक सिंपल डेफिनेशन से हम डेमोक्रेसी को डिफाइन नहीं कर सकते. हम ये नहीं कह सकते कि अगर कहीं सिर्फ इलेक्शंस हो रहे हैं तो वो डेमोक्रेसी है. तो उससे डीपर भी हमने जाके पढ़ा था. इस कंटेक्स्ट में हमने ये देखा था कि भाई डेमोक्रेसी का मतलब केवल इलेक्शंस ही नहीं है. डेमोक्रेसी का मतलब ये भी होगा कि जितनी भी डाइवर्स ग्रुप्स हैं वहां पर, अगर सबको इक्वल पावर, वैल्यू, रिस्पेक्ट दी जा रही है, तब डेमोक्रेसी रियल सेंस में हम उसको कहेंगे कि एक हेल्दी डेमोक्रेसी है. Therefore, it follows that in a democracy, political power should be distributed among as many citizens as possible. So basically what they're saying is, मॉडर्न डेमोक्रेसी के अंदर जितनी ज्यादा हम पावर को डिवाइड कर सके, जितना ज्यादा पावर शेयरिंग कर सके, उतना ज्यादा अच्छा होगा मॉडर्न डेमोक्रेसी के वर्क करने के लिए. सो now what we are going to do is now we are going to study the different types of power sharing. So basically मैं इसमें आपको बता देता हूं, it is going to get deeper. तो इसमें क्या होगा कि पावर शेयरिंग के अलग अलग फॉर्म्स को हम पढ़ने वाले हैं. कैसे? एक पावर शेयरिंग हम पढ़ेंगे अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, विच इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. देन वी आर गोइंग टू स्टडी the power division between the different levels like central level, state level, and if there is a third level, then what is that level? Was that from the beginning or we had a change?
द थर्ड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग जो होगी वो उसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि कैसे अलग अलग जो कम्युनिटी ग्रुप्स हैं उसके अंदर पावर शेयरिंग होती है। और चौथे में हम पढ़ेंगे कि कैसे प्रेशर ग्रुप पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी पावर शेयरिंग होती है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पावर शेयरिंग करेंगे डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसके अंदर हम लाइन बाय लाइन उसको डिस्कस नहीं करेंगे, हम उसको ओवरऑल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं, आई नीड, सो इसमें क्या होगा, अब हम बात करने जा रहे हैं कि पावर कैसे डिवाइड होने जा रही है अमंग द 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट या अमंग द 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। I hope by now you understand there are 3 organs of government, which is one is legislature, the second is executive, and third is judiciary. I hope you understand because this is something which we should have studied in class 6th. ठीक है, but just for brushing up the knowledge, I will tell you. ये जो 3 ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, इन तीनों ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट को काम करना पड़ता है एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो सबसे बड़ी चीज हमारे देश के अंदर कोई चीज है तो वो है संविधान, भारत का संविधान। ना प्रेसिडेंट, ना प्राइम मिनिस्टर, ना मैं, ना आप, ना कोई जनरल, ना कोई, सबसे बड़ी चीज कोई अगर है तो वो है संविधान। इसी संविधान के अंदर ये क्या है, ये एक किस्म से हम कह सकते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है, या फिर सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड भी कह सकते हैं इसे। ये एक ब्रॉड फ्रेमवर्क है जिसके अंदर सब कुछ दिया हुआ है कि गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होगी, गवर्नमेंट की क्या पावर्स रहेंगी, सिटीजन्स के क्या राइट रहेंगे, उनके ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी, उन रिस्ट्रिक्शंस को कौन लगा सकता है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे कौन देखेगा, जुडिशरी क्या चीज है और उसको मतलब जुडिशरी के पास क्या पावर है, ये सब संविधान में दिया हुआ है। तो मैं आपको बेसिक फंक्शन बता देता हूं तीनों ऑर्गन्स के, कि ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि ये मामला क्या है। देखो, फर्स्ट ऑर्गन है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का मतलब होता है लॉ मेकिंग मशीनरी, मतलब जो कानून बनाए वो मशीनरी। अब आप बोलोगे, अभी तो आपने बोला कि संविधान जो है फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है, या बेसिक लॉ ऑफ द लैंड है, या सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है। देखो, वो एक ब्रॉड फ्रेमवर्क बता रहा है, वो ब्रॉड फ्रेमवर्क बता रहा है जिसके हिसाब से कानून कैसे बनेगा, उस कानून का क्या जुरिस्डिक्शन होगा, कौन किस सब्जेक्ट पे कानून बना सकता है, वो उसने बड़ी चीज में एक ब्रॉड फ्रेमवर्क में बनाया हुआ है। हर चीज के ऊपर उसने कानून नहीं बनाया हुआ है। तो लेजिस्लेचर क्या है, वो लॉ मेकिंग मशीनरी है। एग्जीक्यूटिव क्या है, जो लॉ लेजिस्लेचर बनाएगा उसे एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट करेगा, जैसे कि नाम बता रहा है। और जुडिशरी क्या करेगा, जुडिशरी उसको 2 स्टेज में देखेगा, उसका 2 लेवल पे काम होगा। पहले वो ये देखेगा कि जो लेजिस्लेचर ने कानून बनाया है या एग्जीक्यूटिव ने जो उसे एग्जीक्यूट किया है, क्या वो संविधान के प्रोविजंस के हिसाब से है अथवा नहीं है। अगर वो है तो ठीक है, नहीं है तो उसको वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल या फिर अल्ट्रावायर या फिर इनवैलिड घोषित कर सकता है। और उसका दूसरा प्रोसेस क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, उसका दूसरा स्टेप यह है कि अगर वो कानून ठीक है, भारत के संविधान के हिसाब से है, तो उस केस में उस लॉ के हिसाब से वो जो है क्या करेगा, लोगों को इंसाफ दिलाएगा। अब ये कैसे होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहले आ रहा है हमारे सामने ये लेजिस्लेचर। सेंटर के लेवल के ऊपर हम बोले तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जो कि 3 चीजों से बना है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ना लोकसभा के मेंबर है ना राज्यसभा के मेंबर है, फिर भी वो पार्लियामेंट के इंटीग्रल कंपोनेंट है। क्यों? क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा में जो बिल आते हैं, बिल क्या है, बिल एक प्रपोजल है फॉर लेजिस्लेशन। मतलब जब भी आप कोई लॉ बनाना चाहते हैं तो उससे पहले आप एक प्रपोजल लाएंगे ना कि मैं आप ऐसा बिल लॉ बनाना चाहता हूं, फिर वो लोकसभा से पास होगा, फिर राज्यसभा से पास होगा और फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। प्रेसिडेंट जब उस पर साइन करेंगे तभी वो जो बिल है वो लॉ बन सकता है। आप समझ गए? अब क्या है कि सेंटर के लेवल में तो मतलब पूरे भारत देश के लिए जो कानून बनाने का जो पावर है वो किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। भारत के संविधान में शेड्यूल 7 के अंदर यह बता रखा है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे जिसके ऊपर जो है भारत की जो पार्लियामेंट है वो कानून बना सकती है। इसको और ज्यादा डिस्क्रिप्टिव वे में समझेंगे जब हम दूसरा लेवल ऑफ पावर शेयरिंग समझेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि इनका काम क्या है, इनका काम क्या है, इनका काम है कि ये क्या करेंगे, ये कानून बनाएंगे।
और ये कानून किसके हिसाब से होगा? भारत के संविधान के हिसाब से ही बन सकता है। अब लोकसभा में भी कानून हो सकता है, राज्यसभा में भी कानून बन सकता है, मतलब लोकसभा में बिल आ सकता है, राज्यसभा में बिल आ सकता है, बट पास होना होगा उसको दोनों ही हाउसेस से। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि क्या है, इससे हम तीनों ऑर्गन्स को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। मान लो कि एक कानून आता है, उस कानून में यह लिखा रहता है कि भाई जब आप गाड़ी चला रहे हैं, या फिर एक ऐसा कानून मान के, हाँ चलो, अगर आप मान लो कि गाड़ी चला रहे हो और मान लो गाड़ी चलाते चलाते आप सिगरेट पी रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। इट्स वेरी इंजूरियस टू हेल्थ एंड इट शुड नॉट बी डन, बट वी आर जस्ट डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल। तो क्या हो रहा है कि एक इंसान जो है सिगरेट पी रहा है, अगर गाड़ी के अंदर है, तो वो जो है गाड़ी चला रहा है और वहां पर क्या हो जाता है कि वो उसको बोल देते हैं कि भाई ये कानूनन जुर्म है। सरकार ऐसा नियम लेके आ जाती है, सरकार मतलब ये लेजिस्लेचर। लोग अभी कैसे बनता है वो सब बाद में देखेंगे। सो क्या हो रहा है, लोकसभा ने भी इस बिल को पास कर दिया, राज्यसभा ने भी इस बिल को पास कर दिया और प्रेसिडेंट ने सिग्नेचर कर दिया। यानी अब क्या है, गाड़ी के अंदर बैठे बैठे अगर आप सिगरेट पी रहे हैं तो वो क्या है, एक कानूनन जुर्म है। ऐसा हम मान के चल रहे हैं, एक ऐसा लॉ आ गया है। समझ में आ गई बात? एक बिल आया था जिसमें ये बात बोली गई थी, लोकसभा ने भी उसको मेजॉरिटी से पास कर दिया, राज्यसभा ने भी उसको मेजॉरिटी से पास कर दिया और फिर वो प्रेसिडेंट के पास चला गया, प्रेसिडेंट ने उसे साइन कर दिया, अब ये बन गया लॉ। ठीक है जी, बेहतरीन। अब आता है एग्जीक्यूटिव। ये लोग, लेजिस्लेचर ने अपना काम कर लिया, अब एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं। एग्जीक्यूटिव में दो तरीके के एग्जीक्यूटिव आते हैं, एक आते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, एक आते हैं नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मतलब ये लोग, और नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मतलब जो सरकारी कर्मचारी है, आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर, आईआरएस, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स या फिर एमसीडी में काम करने वाले लोग, तमाम सरकारी कर्मचारी वो लोग। सो बेसिकली एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब जो लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा उसको एग्जीक्यूट करने का काम कौन करेगा, एग्जीक्यूटिव करेंगे। कौन करेगा? दो तरीके से एग्जीक्यूटिव हो गए, एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हो गए, एक नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हो गए। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर देंगे, नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव उसे फॉलो करेंगे। इस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाएगा। अब लॉ क्या बना था कि गाड़ी के अंदर सिगरेट पीने वाले लोगों को अब ये एक कानूनन जुर्म है और उसके हिसाब अगर किसी को कोई पकड़ा गया तो उसके ऊपर 10,000 का चालान है, ऐसा करके एक लॉ आया था। अब एग्जीक्यूटिव कौन है? मैंने बताया मंत्री साहब है, और मंत्री साहब के जो है वो तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हो गए और नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हो गए। नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में ट्रैफिक पुलिस भी आ जाती है। अब क्या हो रहा है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड, हाईवे और ट्रांसपोर्ट वाले हैं, वहां की मिनिस्ट्री ने बोल दिया भैया अपने मंत्रालय को कि भैया अब यहां पर ऐसा कुछ होगा तो आप उनको पकड़ेंगे। मंत्रालय ने पुलिस को बोल दिया, ट्रैफिक पुलिस ने क्या किया, एक इंसान था उसको धर लिया, बोला क्या भाई आप गाड़ी के अंदर क्या कर रहे थे, स्मोकिंग कर रहे थे, और कानूनन अब आपने अपराध कर दिया है, क्योंकि लॉ बन चुका है कि अगर आप इसके अंदर गाड़ी के अंदर चलाते हुए सिगरेट पिएंगे तो वह कानूनन जुर्म है। तो एग्जीक्यूटिव ने क्या कर लिया, लॉ को एग्जीक्यूट कर लिया। अब बात आती है जुडिशरी की। अब पुलिस ने उसको पकड़ लिया है और उसका लाइसेंस जब्त हो गया है और वो जुडिशरी के पास चला चुका है। अब क्योंकि ये लॉ नया है तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले लॉ को एग्जामिन करेंगे, क्या ये लॉ भारत के संविधान के हिसाब से है अथवा नहीं। अगर वो भारत के संविधान के हिसाब से है, वो संविधान का कोई भी प्रोविजन वायलेट नहीं कर रहा, तो फिर वो लॉ ठीक है, अपहोल्ड कर देंगे, हाँ भाई ठीक है, अच्छी बात है। अब फिर वो ये देखेंगे, अब ये देखना है क्या वो इंसान सच में गाड़ी के अंदर सिगरेट पी रहा था। अब ये कोर्ट का मामला बन गया, एक तरफ प्रोसिक्यूटर होगा जो ये साबित करेगा कि हाँ वो पी रहा था, और एक तरफ डिफेंस काउंसिल होगा जो ये साबित करेगा कि भाई वो नहीं पी रहा था, या अगर पी रहा था तो उसको मिनिमम से मिनिमम सजा दी जाए क्योंकि उसका फर्स्ट क्राइम है या जो भी है। इस तरीके से फिर जुडिशरी उसको इंसाफ दिलाएगी। तो दो रोल हो गया। एग्जीक्यूटिव ने क्या किया, उसको पकड़ लिया और उसके खिलाफ एफआईआर कर दिया, जो भी कर दिया उसको पकड़ के जुडिशरी के पास दे दिया, लाइसेंस जब्त कर दिया। और जुडिशरी का काम क्या है, पहले देखना लॉ संविधान के हिसाब से है अथवा नहीं है। कुल मिला के इस चैप्टर के हिसाब से क्या हम समझ रहे हैं कि पावर किसी एक के पास नहीं है, ना पावर पूरी लेजिस्लेचर के पास है, ना पावर पूरी एग्जीक्यूटिव के पास है, ना पावर पूरी जुडिशरी के पास है। अगर कोई ऐसा कानून बनाता है तो जुडिशरी देख सकती है कि भाई ये जो कानून बना है संविधान के हिसाब से है कि नहीं, मतलब ये मनमर्जी नहीं कर सकते। एग्जीक्यूटिव भी अपने हिसाब से कोई ऑर्डर नहीं बना सकता, उनको लेजिस्लेचर के द्वारा कानून जो प्रस्तावित है सिर्फ वो वही फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा
जुडिशरी है। अब जुडिशरी को कोई लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव कैसे कंट्रोल करते हैं? भाई आपको पता होगा कि जजेस के रिमूवल का जो प्रोसेस है वो लेजिस्लेचर कंट्रोल करता है कि कैसे जज को उनके ऑफिस से निकाला जा सकता है। हालांकि ये बहुत ही कठिन प्रक्रिया है, ना ही आपके सिलेबस का पार्ट है, मगर मैं आपको बता दूं कि वो कंट्रोल जो है वो लेजिस्लेचर के ऊपर है। फिर वो लेजिस्लेचर जो है उसका पूरा एक इंपीचमेंट प्रोसेस होता है, वो उसको कैरी ऑन करते हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो जज हो या हाई कोर्ट के जज हो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ओके, इसको बोलते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस। मतलब आपने क्या किया, एब्सोल्यूट पावर किसी को नहीं दे दिया, आपने चेक एंड बैलेंस का सिस्टम ले आए। एक हमने पावर शेयरिंग पढ़ ली, अब हम दूसरी पावर शेयरिंग पढ़ने जा रहे हैं। दूसरी पावर शेयरिंग क्या हो रही है, अलग अलग लेवल्स पे हो रही है। मतलब इंडिया एक फेडरल कंट्री है, संघवाद जिसे हिंदी में कहते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि एक्चुअली क्या है कि पावर केवल सेंटर के पास नहीं है। जब मैं सेंटर कहता हूं तो क्या मतलब है, सेंटर मतलब सेंटर हो गया, स्टेट में अलग अलग राज्य सरकारें होती हैं, ये आपको अच्छी तरीके से पता है। सो बेसिकली हम यहां पर क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पावर किसी के पास, सिर्फ मोदी जी के पास नहीं है या मोदी जी के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनके पास नहीं है। पावर जो अलग अलग चीफ मिनिस्टर बैठे हुए हैं अलग अलग राज्यों में, उनके स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास भी है। पावर केवल सेंटर के लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट के पास नहीं है, पावर स्टेट लेजिस्लेचर में भी यानी लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भी है। तो इस तरीके से पावर डिवाइडेड है। आपके समझने के लिए मैं आपको थोड़ा आसान भाषा में बताता हूं कि हमारे भारत में आपको पता है सबसे ऊपर की कोई चीज है तो वो है भारत का संविधान, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये होता है कि जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, में देखता हूं अगर कोई खाली थोड़ी सी स्लाइड होगी ना, हाँ ये इसमें देख, ये है भारत का संविधान। ये भारत का संविधान जो है वो फेडरल इन नेचर है, संघवाद इन नेचर है। तो वो क्या करता है, पावर को डिवाइड कर देता है अमंग डिफरेंट लेवल्स। सबसे पहले है सेंट्रल लेवल, फिर है स्टेट लेवल और फिर एक थर्ड टायर। सो ये हो गया सेंट्रल लेवल, ये हो गया स्टेट और ये हो गया लोकल लेवल। अब सेंट्रल, स्टेट और लोकल का मतलब क्या है, मतलब भारत के संविधान के शेड्यूल 7 के अंदर, शेड्यूल 7 के अंदर एक 3 लिस्ट दी हुई है। कौन सी है वो 3 लिस्ट, एक है सेंटर लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट, एक है कॉन्करेंट लिस्ट और एक है रेसिडुअरी लिस्ट। सेंटर लिस्ट का मतलब क्या है, सेंटर का लिस्ट का मतलब हो गया जिस पे कानून बनाने का, उसे एग्जीक्यूट करने का पावर केवल सेंटर के पास है। कुछ सब्जेक्ट्स दे रखे हैं, जो सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट कितने हैं, 100। इन 100 सब्जेक्ट्स के ऊपर अगर कानून बना सकता है तो वो भारत की पार्लियामेंट है, अगर एग्जीक्यूट कर सकते हैं तो वो भारत के प्रधानमंत्री और उसको सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं। आपको बात समझ में आ रही होगी मेरे ख्याल से। और वो कितने सब्जेक्ट्स हैं, वो 100 सब्जेक्ट्स हैं। एग्जाम्पल के तौर पे डिफेंस। अब डिफेंस में मतलब मान लो कि गुजरात में पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो जाती है। अब गुजरात की सरकार जो कि स्टेट लिस्ट में आती है वो बोलेगी भाई बॉर्डर तो मेरा है, मैं अपने हिसाब से देखूंगा ना भाई, वो जो लिस्ट है, वो जो सब्जेक्ट है वो सेंटर का मामला है। उस पर कानून बनाने का और उसे एग्जीक्यूट करने का दोनों का अधिकार किसका होगा, सेंटर का होगा। यानी अगर लड़ाई लगती है या छोटी सी गहमा गर्मी होती है तो उसके ऊपर सारे जो डिसीजन होंगे वो सेंटर ही करेगा। अब सवाल उठता है, अच्छा वहां पर पुलिस नहीं पार्टिसिपेट करेगी जो स्टेट सब्जेक्ट है? नहीं, पुलिस नहीं करेगी। वहां पे स्टेट लिस्ट पे मैंने आपको बता दिया, सेंट्रल लिस्ट में कौन है, एग्जीक्यूटिव भी आएंगे, लेजिस्लेचर भी आएंगे। तो अगर एग्जीक्यूटिव है तो वहां पे कौन होगी, पैरामिलिट्री फोर्स होगी या सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स होगी या फिर इंडियन आर्मी होगी। वही उस पर एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं एज पर द डिसीजंस ऑफ द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। दूसरी लिस्ट आती है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स हैं, मेरे ख्याल से 66 सब्जेक्ट्स हैं। 66 है नहीं, 61 है। आई एम सॉरी, आई एम नॉट श्योर कि कितने सब्जेक्ट्स हैं, बट मेरे ख्याल से 61 है। ओके, तो क्या 61 सब्जेक्ट्स हैं? इसमें क्या हो रहा है, इसमें यह हो रहा है कि इन सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ बनाने का या फिर उसे एग्जीक्यूट करने का काम केवल कौन कर सकता है, या तो स्टेट का लेजिस्लेचर, लॉ बनाना है तो उसके ऊपर कौन बनाएगा, स्टेट का लेजिस्लेचर यानी लेजिस्लेटिव असेंबलीज और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों मिलके, और या फिर अगर उसको इंप्लीमेंट करना है तो वो स्टेट का एग्जीक्यूटिव करेगा, चाहे वो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो या फिर राज्य के जो अपने स्टेट के जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वो करेंगे।
आई होप यू अंडरस्टूड। स्टेट पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव या स्टेट का नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव उसे एग्जीक्यूट करेगा। अब सवाल उठता है कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें टोटल सब्जेक्ट्स हैं 52। ये क्या है? इस पे कानून बनाना या इसे एग्जीक्यूट करना। कॉन्करेंट मतलब हो गया दोनों का, मतलब सेंटर भी इस पे कानून बना सकता है, स्टेट भी इस सब्जेक्ट पे कानून बना सकता है। सेंटर भी इसके ऊपर एग्जीक्यूट कर सकता है, स्टेट का एग्जीक्यूटिव भी इसको एग्जीक्यूट कर सकता है। पर मान लो कि अगर एक ऐसा केस आता है जहां पर एक ही सब्जेक्ट के ऊपर दोनों ने कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें बना दी हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि अगर ये बोला जाए कि भाई एजुकेशन एक कॉन्करेंट सब्जेक्ट है, अब ये बोला जाए कि सेंटर ने उस पर कानून बना दिया कि अब से संडे को स्कूल होगा, और स्टेट बोले कि नहीं भाई अब से संडे को स्कूल नहीं होगा, इनफैक्ट हफ्ते में 2 दिन छुट्टी होगी। तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी ऑर्डर्स बना चुके हैं इसके ऊपर, बट सेंटर को इसमें ज्यादा पावर दे दी गई है। बोला गया कि अगर कॉन्ट्राडिक्टरी ऑर्डर्स बना दिए गए हैं कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट के ऊपर, तो फिर सेंटर की जो चीज है वो प्रिवेल करेगी। इसीलिए डिस्पाइट ऑफ दिस फैक्ट कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है, सेंटर को ज्यादा पावर दी गई है। और एक चौथी लिस्ट आती है रेसिडुअरी लिस्ट, मतलब अगर कोई सब्जेक्ट है जो कि सेंटर, स्टेट या कॉन्करेंट के भी उसमें मेंशन नहीं किया गया है और जमाने के आगे बढ़ने के साथ वो सब्जेक्ट निकल के आता है, तो उस पे कानून बनाने का हक अगेन किसके पास होगा? सेंटर के पास होगा। तो आप देख रहे हैं कि सेंटर कैसे ज्यादा पावरफुल है। सेंटर के पास ज्यादा सब्जेक्ट्स भी हैं, सेंटर के पास इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स भी हैं। इनफैक्ट कॉन्करेंट लिस्ट पे अगर ज्यादा पावर है तो वो भी सेंटर के पास है, और रेसिडुअरी लिस्ट पे अगर बनाने का अधिकार है तो वो भी किसके ऊपर है? वो भी सेंटर को चला जाएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। सो मगर यहां पर ये किया गया कि एब्सोल्यूट पावर, सारी पावर सेंटर को नहीं दी गई है, कुछ पावर स्टेट को भी दी गई है। तो इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, यहां पर भी पावर शेयरिंग हो रही है। वहां 3 ऑर्गन्स के बीच में हो रही थी, यहां पे 3 लेवल्स के बीच में हो रही है। चलो 2 लेवल तो पढ़ लिया, ये तीसरा लेवल क्या है भाई साहब? तीसरा लेवल ये है कि अभी जब संविधान, भारत का संविधान लिखा गया था, तो वहां पर केवल 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट बनाई गई थी, एक सेंटर की और एक स्टेट की। बट 1992 में गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर संविधान में एक चेंज किया गया, जिसे कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के नाम से जानते हैं। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ चेंज करते हैं तो उसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहते हैं। गांधी जी का यह विचार था कि भाई सारी जो पावर है वो केवल सेंटर या स्टेट के पास नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट जो पावर है, असली पावर, वो लोगों को गांव में देनी चाहिए, कि ताकि गांव वाले जो हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स को ज्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं, या फिर शहर के केस में शहर वाले ज्यादा अच्छे तरीके से अपनी प्रॉब्लम को जानते हैं। तो ये पावर उनको देनी चाहिए, कि ताकि वो अपनी ही सरकार खुद से बना सकें और अपने लिए जो मेजर डिसीजंस हैं, रिसोर्सेज हैं, उनका इस्तेमाल करके अपने लिए ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। उनकी सोच ये थी कि जैसे कि एक स्कूल होता है, एक स्कूल के अंदर बहुत सारी क्लासेस रहती हैं, तो अगर हर क्लास जो है अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ले, साफ सफाई कर ले, डिसिप्लिन मेंटेन कर ले, तो अपने आप पूरा स्कूल एक अच्छी तरीके से इमेज बना सकता है। क्योंकि स्कूल किससे बना है? क्लासेस से बना है। अगर हर क्लास अच्छी हो जाए तो स्कूल अपने आप अच्छा हो जाएगा। वैसे ही उनका कहना था कि भारत देश जो है वो गांव से बना हुआ है। अगर हर गांव को ये चीज मिल जाए कि भाई वो गांव अपने लिए रिसोर्सेज यूज कर सकें, उसको अच्छा कर सकें, तो अपने आप हमारा जो भारत देश है वो अच्छा हो जाएगा। और वो कब पॉसिबल हो पाएगा? वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप उनको रिसोर्सेज जो हैं वो दे सकें, हम उनको रिसोर्सेज एलोकेट कर सकें, वो उसका इस्तेमाल कर सकें। क्योंकि आप खुद सोचो कि एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं, कैसे समझेंगे? अब अभी कोविड की सिचुएशन आई थी, अगर मान लो कि कोई राज्य सरकारें नहीं होती, कोई गांव में सरकार नहीं होती, या फिर डिस्ट्रिक्ट में कोई सरकार नहीं होती, केवल मोदी जी को ये कोविड की सिचुएशन को हैंडल करना पड़ता, उनके मंत्रिमंडल को करना पड़ता, तो क्या आपको लगता है कि इतना आसानी से सिचुएशन हैंडल हो पाती जितनी सिचुएशन हैंडल हो पाई? नहीं। वो सिचुएशन अच्छे से इसलिए हो पाई क्योंकि सेंटर पे भी लोगों को देखने के लिए एक लेवल है, स्टेट में भी देखने के लिए एक लेवल है, और फिर उसके बाद गांव और शहरों को लोकल लेवल पे भी देखने के लिए एक लेवल है। 5 साल सरकार के पास रहता है, हमें लगता है ये बहुत बढ़िया टाइम है, उसमें सरकार वंडर्स कर सकती है। बट हम जो समझने में असफल हो जाते हैं, विच वी फेल टू अंडरस्टैंड, इज दैट दिस कंट्री इज सच अ ह्यूज कंट्री दैट 5 years ऑफ गवर्नेंस इज नॉट इनफ to make a significant change in the country. Significant change in the country can only take place when the changes are taking place at the grassroots level. If the changes are taking place in grassroots level, of course, सारे ग्रासरूट लेवल पे अगर चेंजेस हो जाते हैं तो इट विल स्टार्ट मैनिफेस्टिंग एट द बिगर लेवल, मैक्रोस्कोपिक लेवल।
This is exactly what the situation was there in 1992. 1992 में हमारे संविधान के अंदर दो बहुत ही बड़े अमेंडमेंट किए गए, एक 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और एक 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के सहारे हमने क्या किया कि हमने पंचायत सिस्टम बनाया। पंचायत सिस्टम क्या है? हर गांव के अंदर क्या बनाया गया? हमने एक पंचायती राज सिस्टम बनाया। इसमें 3 टायर सिस्टम बनाया गया। मान लो एक गांव है, इसको ऐसे समझो, यहां पर ये यहां समझते हैं। मान लो एक गांव है सुनौला करके, सुनौला करके एक गांव है, ये है वो गांव। अब क्या है, इस गांव में कुछ लोग होंगे, बच्चे, बूढ़े, जवान, सब कोई। अब वो क्या करेंगे, 18 साल के ऊपर जितने भी लोग हैं वो इस गांव के लोकल लेवल पे इलेक्शन करवाएंगे और यहां पे बनेगी ग्राम की पंचायत, और उसके जो हेड होंगे वो कौन होंगे? उनके होंगे सरपंच। तो इस गांव के लिए एक लोकल गवर्नेंस सिस्टम बनेगा जिसे हम बोलते हैं ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत, और इसके हेड होंगे सरपंच। ऐसे ही करके बहुत 2-3 गांव होंगे, और ये 3 गांव मिलके क्या करेंगे, इनके लिए भी एक सिस्टम बनेगा। मतलब यहां से भी कुछ लोग सिलेक्टेड होंगे, यहां से भी कुछ इलेक्टेड होंगे, यहां भी कुछ इलेक्टेड होंगे। तीनों इलेक्टेड बॉडीज में से कुछ लोग यहां फाइनली यहां निकल के आएंगे। मतलब मान लो यहां 4 सरपंच हैं, यहां भी 4 सरपंच हैं, यहां भी 4 सरपंच हैं, तो इसमें से एक करके आ जाएंगे और यहां पर 3 सरपंच आ जाएंगे। ये 3 सरपंच क्या करेंगे, इन 3 लेवल के ऊपर, मतलब ये पूरा जो एक क्लस्टर बना हुआ है इसके ऊपर ये गवर्नेंस करेंगे। इसके बाद क्या होगा, आपने सुना होगा कौन सा जिला, आपसे अक्सर पूछा जाता है जब कोई आप गांव बोलते हो तो आपसे पूछा, दूसरा सवाल जो पूछा जाता है, बोलते हैं जिला कौन सा है। तो ये 3rd लेवल ऑफ गवर्नेंस बन जाती है। तो वो क्या करते हैं, जो जिला होता है, जिला परिषद कहते हैं उसे, तो वो जिला परिषद क्या करेगा, हर जिला के अंदर कुछ गांव आएंगे। तो 3 लेवल्स हो गए, एक हो गया विलेज जिसे बोलते हैं ग्राम पंचायत, फिर आ गया पंचायत समिति, पंचायत समिति, और तीसरा वाला गया जिला परिषद। कुल मिला के ये जो सिस्टम बनाया हुआ है ये इसलिए बनाया है कि हर गांव अच्छी तरीके से प्रोग्रेस कर पाए, गांव का क्लस्टर प्रोग्रेस कर पाए, जिला प्रोग्रेस अच्छे से वो कर पाए, डेवलप कर पाए। अगर सारे डिस्ट्रिक्ट्स अच्छे तरीके से हो गए, सारे क्लस्टर अच्छे से हो गए, सारे गांव अच्छे से हो गए, ऑफ कोर्स इंडिया अपने आप डेवलप कर जाएगा। वैसे ही शहरों में भी एक अर्बन गवर्नेंस सिस्टम को बना रखा है जिसे हम बोलते हैं म्युनिसिपैलिटी। अब ये म्युनिसिपैलिटी क्या है, सिंपल सी बात है, जैसे गांव में लोकल सेल्फ गवर्नेंस के लिए किया जाता है वैसे शहरों में भी किया जाता है। शहरों में भी कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं, उन शहरों के टॉपिक्स को वहां शहर के जो लोकल गवर्नेंस सिस्टम है वो उसको देखती है, और वहां के जो हेड होते हैं उन्हें हम मेयर कहते हैं। और ज्यादा डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि इस तरीके जो डिफरेंट लेवल्स हैं गवर्नमेंट के, ये बनाए गए हैं सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, लोकल गवर्नमेंट पे, इसलिए बनाए गए हैं कि पावर शेयर हो सके, और पावर शेयर होने की वजह से क्या होगा, बेहतर डेवलपमेंट हो पाएगा, बेहतर प्रोग्रेस हो पाएगा। अब इसके बाद चलते हैं हम तीसरे लेवल ऑफ पावर शेयरिंग में, जो कि है कम्युनिटी लेवल के ऊपर। ये है हमारी तीसरी लेवल की, हम एक पेज आगे आ गए थे, ये है हमारी तीसरी लेवल की जहां पर हम डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के साथ पावर शेयर कर रहे हैं। ओके, सो अब हम पढ़ने जा रहे हैं पावर शेयरिंग, जो कि दूसरे अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच में होती है। अभी तक हमने देख लिया अलग अलग ऑर्गन्स के बीच में पावर शेयरिंग कैसे हो रही थी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में, वो क्यों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमने देखा कि पावर शेयरिंग कैसे हो रही थी डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नेंस के ऊपर, चाहे सेंटर, स्टेट या फिर लोकल गवर्नेंस के ऊपर। अब हम देखने जा रहे हैं कि पावर शेयरिंग कैसे होनी चाहिए डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में। मैंने आपको इसके लिए बहुत अच्छे से पहले ही समझा दिया कि सोशल ग्रुप्स मतलब क्या होता है। जाहिर सी बात है कि सोसाइटी आपको कुछ आइडेंटिटीज देती है और उसके बेसिस पे पूरे देश की पॉपुलेशन को हम कुछ ग्रुप्स में बांट सकते हैं। अब हर सोशल ग्रुप्स के पास कुछ पावर शेयरिंग होनी चाहिए, उनके पास कुछ ना कुछ पावर्स होनी चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते तो उस केस में उन ग्रुप्स के बीच में अनोनिमिटी आ सकती है। और हम पावर शेयरिंग कैसे दे सकते हैं इन लोगों को, अलग अलग पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देके, सरकारी जॉब्स में उनको जो है क्या बोलते हैं रिजर्वेशन देके, इसके अलावा उनको बेटर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज देके, ये अलग अलग सोशल ग्रुप्स हो सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया, चाहे वो जेंडर के बेसिस पे हो, रिलीजन के बेसिस पे हो, कास्ट के बेसिस के ऊपर हो, रेस के ऊपर हो, प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर हो,
इन सारी चीजों के बेसिस के ऊपर आप उनको क्या दे सकते हैं, उनको एक सोशल आइडेंटिटी दे सकते हैं, जिसके बेसिस पर हम सोशल ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से कौन कौन से, एक फॉर एग्जांपल इसको समझने के लिए समझते हैं, जैसे कि जेंडर के बेसिस पे हम समझते हैं। पहले हम क्या मानते थे, केवल 2 ही जेंडर्स हैं। कौन कौन से जेंडर हैं, एक मेल होता है, एक फीमेल होता है। कुल मिला के हमने तीसरे जेंडर को, विच इज ऑल्सो क्रिएटेड बाय ऑलमाइटी गॉड, तो उसको हमने एक्सेप्ट किया ही नहीं। हमने कभी सोचा ही नहीं कि ये तीसरा जेंडर भी हो सकता है, विच इज ट्रांसजेंडर। हमारे इसी एटीट्यूड के वजह से हम आज क्या देखते हैं कि पुश्तों से क्या हो रहा है कि ट्रैफिक सिग्नल्स के ऊपर आपको एक ही कम्युनिटी देखने को मिलेगी जो भीख मांगते हैं। वो कौन सी होगी, ट्रांसजेंडर्स। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने कभी उस ट्रांसजेंडर को माना ही नहीं कि वो भी एक तीसरा जेंडर हो सकता है। उसके वजह से उनको हमने कभी अपॉर्चुनिटी नहीं दी पढ़ने की, जॉब करने की, और अपने लिए वो सारी चीजें करने के लिए जो सोसाइटी में बाकी सोशल ग्रुप्स कर सकते हैं अपने लिए। इसलिए आज वो क्या हो गए, पिछड़ गए। वैसे ही आपको पता है कि इंडिया में कास्ट सिस्टम कितना ज्यादा प्रिवेलेंट और कितना ज्यादा स्ट्रांग रहा है। उसके वजह से बहुत सारी ऐसी कम्युनिटी, बहुत सारे ऐसे सोशल कास्ट ग्रुप्स थे जिनको कि कभी आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला, और आज उनको क्या किया और वो क्या हो गया, उनकी स्थिति क्या हो गई, वो धीरे धीरे करके पिछड़ने लगे। तो अब सरकार क्या कर रही है, उनको पावर शेयरिंग करने के लिए उनको हम क्या कर रहे हैं, हम उनको रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। कहां पर रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, हम उनको दे रहे हैं भारत की जो पार्लियामेंट है उसमें, अलग अलग सरकारी जॉब्स में, लेजिस्लेचर में हमने उनको दे दिया, एग्जीक्यूटिव में हमने उनको दे दिया रिजर्वेशन। इनफैक्ट एजुकेशन में भी हम उनको रिजर्वेशन दे रहे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ने का मौका दे रहे हैं। ऐसे सारी चीजें सरकार कर रही है कि ताकि जो सोशल ग्रुप पिछड़ा रह चुका था, सोसाइटी से एलिनेट हो चुका था, अब हम उसको सोसाइटी से वापस जुड़ने का एक मौका दे रहे हैं। ऐसा करके हम कोई एहसान नहीं कर रहे, हम उनके साथ पावर शेयर कर रहे हैं कि ताकि वो एलिनेटेड फील ना करें अपने को, और वो भी देश के विकास के अंदर अपना योगदान दे। जैसे कि आपको पता है, जितना ज्यादा योगदान होगा उतना ज्यादा बेहतर तरीके से देश आगे निकल के आएगा। चौथा जो पावर शेयरिंग है, ये हमने देख लिया कि डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में देखा हमने। चौथी पावर शेयरिंग जो है वो बात होगी किसके बीच में, प्रेशर ग्रुप्स में, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में। हमारे को अच्छी तरीके से पता है कि एक डेमोक्रेसी के अंदर पीपल शुड हैव द ऑप्शंस ऑफ चूजिंग एज देयर पॉलिटिकल प्रेफरेंस, राइट। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज इस तरीके से बनती हैं, और हर पॉलिटिकल पार्टीज को जब हम क्या बोलते हैं, वोट करते हैं, इलेक्ट करते हैं, तो उससे क्या होता है, एक सिस्टम ऑफ कंपटीशन जनरेट होता है। इस सिस्टम ऑफ कंपटीशन के वजह से क्या होता है, एक होड़ हो जाती है कि बेहतर परफॉर्म करने की। इसके वजह से क्या होता है, ऑल टुगेदर वी कम अप एज अ बेटर नेशन। इससे एक और चीज होती है कि कोई भी जो देश, मतलब कोई भी जो सरकार है या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, वो बहुत देर तक सरकार नहीं बना के रख सकती। ऑफकोर्स दूसरी पार्टी हमेशा किस फिराक में रहेगी, हमेशा इस फिराक में रहेगी कि किस तरीके से इसके खिलाफ मैं कोई चीज ऐसा ढूंढूं जो इसने गलत किया है और उसको लोगों के सामने लेके आऊं, और फिर ये सरकार गिरे तो हमें सरकार बनाने का मौका मिले, और फिर हम बेटर करके दिखाएं कि हम ज्यादा बेटर तरीके से कर सकते हैं। ये बेटर होने की जो एक कंपटीशन है, इट्स अ वेरी गुड कंपटीशन, और ये तभी हो सकता है जब पावर शेयरिंग हो। क्या मतलब है इसका, मतलब अगर केवल एक ही पॉलिटिकल पार्टी को जो है हमारे पास ऑप्शन होता कि यही पॉलिटिकल पार्टी है, तो ना कंपटीशन होता, ना पावर शेयरिंग होती, और फिर एक पार्टी को जब एक अश्योरेंस हो जाती कि भाई मैं ही हमेशा आने वाली हूं, तो फिर उसके वजह क्या हो जाता, उनका एक कॉम्प्लेसेंट एटीट्यूड डेवलप हो जाता, और फिर वो देश के विकास के बारे में नहीं सोचते। एक कंपटीशन होने की वजह से, पावर शेयरिंग के होने की वजह से ही क्या हो रहा है कि हम लोगों को एक बेहतर देश देखने को मिल रहा है। ये तो हो गया पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में वाली बात। प्रेशर ग्रुप्स, पावर शेयरिंग प्रेशर ग्रुप और गवर्नमेंट के बीच में, कहने का मतलब क्या है, ये पावर ग्रुप्स होते क्या, ये प्रेशर ग्रुप्स होते क्या है, ये बेसिकली एक्सटेंशंस हैं किसकी, पॉलिटिकल पार्टीज के। आपने देखा कि अलग अलग सिविल सोसाइटीज बनती हैं, ये प्रेशर ग्रुप क्या करते हैं, ये प्रेशर ग्रुप हमेशा सरकार के ऊपर एक प्रेशर बनाने का काम करते हैं। अगर सरकार के पास एब्सोल्यूट पावर होता और इनके पास बिल्कुल भी कोई पावर नहीं होता, तो उससे क्या होता है कि सरकार अपनी मनमर्जी करती। बट इन प्रेशर ग्रुप्स के पास ये पावर होती है एज अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी कि ये सच उजागर करते हैं सरकार के बारे में, उनकी एक्टिविटीज के बारे में क्वेश्चन मार्क
बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, मीडिया में सामने सबके सामने रखते हैं। वो पॉलिटिकल क्वेश्चंस सरकार को मजबूर करती हैं कि वो देश के हित के लिए काम कर सकें, सोसाइटी के हित के लिए काम कर सकें, एब्सोल्यूट पावर्स को एक्सरसाइज ना करें। इन सारी चीजों से क्या बनता है, इन सारी चीजों से एक बेहतर देश निकल के सामने आता है। कम्युनिटी गवर्नमेंट जो इससे पहले हमने समझा था, उसका एक क्लासिकल एग्जांपल हमने बेल्जियम के उसमें भी देखा था कि बेल्जियम में कैसे एक तीसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनती है, एक कम्युनिटी गवर्नमेंट, जहां पर अलग अलग कम्युनिटी, मतलब जो लैंग्वेज थी, जर्मन, डच, वो क्या बोलते हैं, फ्रेंच, तो उन सबकी एक अलग अलग कम्युनिटी बनती है एंड उनको कंसल्ट किया जाता है। कोई भी अगर हम किसी पर्टिकुलर जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में जब लॉ बनाते हैं तो उनसे कंसल्टेशन मैंडेटरी था। इस तरीके से हमने क्या किया, कम्युनिटी के साथ पावर शेयरिंग कर दी, हर कम्युनिटी को जो है उसको हमने इंपॉर्टेंस दे दी।